تلنگانہ کی خبری تفصیل سے حیدرآباد میں آج شام موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شام 5 بجے شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ زبردست بارش ہوئی۔ سخت گرمی سے عوام کو راحت ملی ہے۔ شہر کے علاقے جات شیرلنگم پلی، چندانگر، میاں پور، گچی باولی، کوکٹ پلی، جڑیمٹلا، سوماجی گوڑا، تلنگانہ سیکریٹریٹ، بنجارا ہلز، ایل بی نگر، ونستلی پورم، حیات نگر، کشائی گوڑا، ملکاج گری، نریٹمیٹ میں بارش ہوئی ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا۔ بارش کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے جی ایچ ایم سی حکام نے عملے کو ہدایت دی ہے۔ سڑکوں پر سے پانی ہٹانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ کے قریب گنبدان قطب شاہی کے احاطے میں واقع عیدگاہ نہ صرف حیدرآباد کا سب سے قدیم بلکہ سب سے خوبصورت عیدگاہ ہے۔ اس عیدگاہ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں نیم کے پیڑ بھی لگائے گئے ہیں۔ عیدین کے موقع پر اس تاریخی عیدگاہ میں تقریباً 1 لاکھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ پیش رپورٹ۔ گنبدان قطب شاہی دکن کے سب سے بہترین تاریخی آثار میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ کے قریب گنبدان قطب شاہی کے احاطے میں موجود یہ عیدگاہ قطب شاہی دور میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ قطب شاہین نے عید کی نماز کو کھلے آسمان کے نیچے ادا کرنے کی سنت کے مطابق قلعہ گولکنڈہ کے باہر یہ خوبصورت عیدگاہ تعمیر کروایا تھا۔ عیدگاہ قطب شاہی حیدرآباد کا سب سے قدیم عیدگاہ ہے۔ یہاں کبھی شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ عوام بھی عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ عیدگاہ آج بھی ہزاروں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں کے مقامی مسلمان یہاں پر عیدین کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ گنبدان قطب شاہی کی جو قدیم عیدگاہ ہے، اس کو قطب شاہی عیدگاہ کے نام 7 ٹوم سے جانتی ہے دنیا۔ یہاں پر میں تقریباً 25 سال قبل سے میں یہاں پر امامت و خطابت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہ اس بات کا ہم کو فخر حاصل ہے کہ یہ قطب شاہی خاندان کی یہ پہلی عیدگاہ حیدرآباد دکن کی جو قطب شاہی خاندان نے بنایا، یعنی محمد قلی قطب شاہ نے اس کی تعمیر کی۔ اور یہ 4 مینار اور یہ گنبدان قطب شاہی کی جو شاہی عیدگاہ ہے، اس کی تقریباً اتنی ہی عمر ہے، یعنی 450 سال سے زیادہ۔ اور ایک ساتھ میں قلعے میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد، وہ اور یہ عیدگاہ ایک ہی ساتھ بنی۔ جب یہ لوگ حیدرآباد دکن آئے تو سب سے پہلے یہ لوگوں نے مسجد اور عیدگاہ کی تعمیر کی اور اپنے رہنے کے لیے محلات بنائے، اور اس کے بعد یہ لوگوں نے یہاں پر قلعہ بنایا۔ تو جب سے ہی یہاں پر یعنی 450 سال پہلے سے یہاں پر نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ عیدگاہ 25 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط ہے، اور یہاں پر قلعہ گولکنڈہ، اطراف، اکناف، شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات کے لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد لوگ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ صرف عیدگاہ نہیں بلکہ گنبدان قطب شاہی جو 100 ایکڑ پر محیط ہے، اس میں بھی آدھے حصے میں تقریباً لوگ وہاں پر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی کی فن تعمیر کچھ اس طرح منفرد ہے کہ اس کا ممبر زمین سے 3 چبوتروں کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس طرح عیدگاہ کی آخری صف میں موجود مصلی بھی ممبر پر کھڑے خطیب کو دیکھ سکتا ہے۔ خوبصورت منظر ہوتا ہے عید کے دن، یہاں پر گرینری لگی ہوئی ہے، جھاڑوں کے نیچے تو عید کی نماز ہوتی ہے، اور یہ عیدگاہ کا جو خوبصورت منظر ہے، جو روحانی منظر ہوتا ہے عید کے دن، لاکھوں مسلمان عید کی نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ اگر ہم عیدگاہ کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ کچھ کمی محسوس رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ قطب شاہی عیدگاہ زمین سے جو چبوترا آپ دیکھ رہے ہیں وہ 20 فٹ اونچا چبوترا ہے۔ اس کے اوپر اور ایک چبوترا بنایا گیا ہے جو ہے 7 فٹ اونچا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب ٹھہرنے کے لیے جو ممبر بنایا گیا ہے وہ جو ہے لگ بھگ 7 فٹ کا ہے، اور کافی لوگ جو ہے یہاں پہ آ کے فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں۔ عیدگاہ سب سے پہلی گولکنڈہ حیدرآباد کی پہلی عیدگاہ ہے جہاں پر اتنا خوبصورت منظر، آپ کو اتنی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی کے احاطے میں ایک کنواں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کنواں عیدین کے موقع پر عوام کو وضو کے پانی کی فراہمی کے لیے بنایا گیا تھا۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں مصلیان کو دھوپ اور گرمی سے راحت کے لیے عیدگاہ کے میدان میں نیم کے پیڑ لگائے گئے ہیں۔
कुतुब शाही ईदगाह गोलकुंडे की एक और खासियत यह है कि यहाँ पर ईदगाह में पेड़ भी लगाए गए हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये हैदराबाद का वाहिद ऐसा ईदगाह है जहाँ पर लोग छाँव में बैठकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। कैमरामैन मंडल के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एमएलसी ज़मीनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया है। लोकल बॉडी कोटे के तहत मुत्तहदा अजला नलगुंडा, रंगारेड्डी और वरंगल में टीआरएस के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। साबिक वजीर पी महेंद्र रेड्डी जो असेंबली इलेक्शन में शिकस्त हुई थी, रंगारेड्डी से कामयाब हुए। महेंद्र रेड्डी ने 224 वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप रेड्डी को शिकस्त दी। కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా మెజారిటీ తోటి గెలిపించడం జరిగింది. ఎమ్మెల్సీగా ఈ 14 నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎమ్మెల్యేల సహకారంతో తప్పకుండా అందుబాటులో ఉండి పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్సీకి అవకాశం ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. नलगुंडा के टीआरएस उम्मीदवार चिन्नप्पा रेड्डी ने 226 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को शिकस्त दी। वाज़ेह है कि हालिया लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने मुत्तहदा जिला नलगुंडा से 2 सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई है, और लेकिन एमएलसी ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। वरंगल के टीआरएस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी ने भी आसानी से कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकट रेड्डी को शिकस्त दी। टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी पर पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि टीआरएस के लिए लोकसभा नतायज तवक्कुओं के मुताबिक नहीं रहे। टीआरएस ने 16 सीटों पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन 9 लोकसभा सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवार कामयाब हुए। करीमनगर लोकसभा सीट जिस पर केसीआर मुंतखब हुए थे, और निजामाबाद जहां से केसीआर की डॉक्टर कविता को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एमएलसी से नताज के बाद टीआरएस कारकुनों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वहीं तेलंगाना में जिला प्रजा परिषद और मंडल प्रजा परिषद के वोटों की गिनती मंगल को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात 3 मरहलों में 6 मई, 10 मई और 14 मई को हुए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती के मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आज रैतु बंधु स्कीम के लिए आज 6,900 करोड़ रुपए जारी किए। मौसम खरीफ में किसानों को अदा करने की हुकाम को हिदायत दी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को 1 एकड़ जमीन पर 4 से 5 हजार रुपए दे रही है। हुकूमत ने रकम जारी करने का ऐलान नहीं किया है। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन के बाद हुकूमत फंड्स जारी करने का ऐलान करेगी। तेलंगाना के वजीर ज़राअत ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम तेलंगाना हुकूमत की मुनफरद स्कीम है। इसकी नकल मरकजी हुकूमत ने की है। जिला यादाद्री भोंगीर के बोमला रामाराम में धमाकू अशिया बनाने वाली एक कंपनी में धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। महलूक शख्स की लाश के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। महलूक जी कश्यप का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सेफ्टी रूल्स की अनदेखी के सबब ही यह हादसा हुआ। फैक्ट्री को हटाने की मांग करते हुए मकामी लोगों ने कुछ देर यहां धरना भी दिया। मकामी लोगों का कहना है कि एक शख्स मरने के बावजूद कंपनी इंतजामिया ने मकामी लोगों को इतला देने की जहमत नहीं की और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। कंपनी के मुलाजमीन भी इस हादसे से सकते में है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा से आने वाले मजदूरों को ही इस कंपनी में काम दिया जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सरकारी इंतजामिया उनके मुतालबात पर टस से मस नहीं हो रहा है। कंपनी इंतजामिया के साथ साजबाज का लोगों ने सरकारी हुकाम पर इल्जाम लगाया है। मशहूर नागार्जुना सागर इलाके के हिल्स कॉलोनी में बाईपास के करीब नौमौलूद बच्ची को छोड़कर चले जाने का वाकया रुनवा हुआ है। नामालूम अफराद नौमौलूद बच्ची को झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गए।
मकामी शख्स लक्ष्मण सुबह चहलकदमी के लिए निकले थे। उन्होंने झाड़ियों में बच्चे के रोने की आवाज सुनी और करीब जाकर देखा तो ये बच्ची झाड़ियों में पड़ी थी। इतला देने पर पुलिस ने आशा वर्कर्स की मदद से इस बच्ची को कमला नेहरू सरकारी अस्पताल को मुंतकिल किया और अस्पताल में बच्ची का इलाज किया गया। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत मुस्तहकम बताई है। पुलिस को शुबा है कि सुबह सवेरे ही कोई बच्ची को छोड़कर गया है। जिला संगारेड्डी मनोरू मंडल के बोरंचा और दीगर देही इलाकों में 2 दिनों से फकीर के लिबास में फिर रहे एक शख्स पर गांव वालों ने खूब तशद्दुद किया। लोगों का इल्जाम है कि शख्स चिकनी चुपटी बातें करके लोगों के सामान ले लेता था। लोगों ने इसे मार मार कर अधमरा कर दिया। कर्नाटक का रहने वाला मनोज फकीर का भेष डालकर मुबैना तौर पर यह कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था। वो घर घर जाकर कुछ लोगों को बीमारी आने का खदशा जाहिर करते हुए मुबैना तौर पर पैसे ऐंठ रहा था। इस शख्स पर इल्जाम है कि उसने कुछ लोगों को कहा कि उसकी झोली में एक चीज डालेंगे तो वो 2 बनकर आएंगे। इस पर लोगों ने उसकी झोली में सेल फोन और दीगर कीमती चीजें डाल दी, लेकिन वो लोगों को बहला फुसला कर वहां से रफू चक्कर हो गया। मुतासरा लोगों ने इसके आसपास देही इलाकों में ढूंढ निकाला और खूब पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चोरों की बदनाम जमाना गैंग चड्डी गैंग ने निजामाबाद में हलचल मचा दी है। निजामाबाद के मुबारक नगर में आज सुबह चड्डी गैंग के 3 अरकान ने एक घर में चोरी करने की कोशिश की। घर में दाखिल होने की कोशिश की, नाकामी पर एक शख्स पर हमला कर दिया। चड्डी गैंग के निजामाबाद में होने की इतला पर मकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने चड्डी गैंग मामले पर केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्लिम बरादरान वतन में रमजान के तोहफों की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने गरीब मुसलमानों में हुकूमत की जानिब से रमजान का तोहफा दिया। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को ईद की पेशगी मुबारकबाद की और कहा कि रमजान इबादतों का महीना है जिसमें इंसानियत का दर्स दिया जाता है। खम्बम में मकामी रुकन असम्बली के हाथों रमजान गिफ्ट की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर तबके की तरक्की के इक़दाम कर रही है। खम्बम शहर में घर घर साफ पीने का पानी सरबराह करने के मंसूबे के तहत मुख्तलिफ काम जारी हैं। 300 करोड़ रुपए की लागत से साफ पीने का पानी फराहम करने की गर्ज से शहर में मिशन भगीरथा चलाया जा रहा है। खम्बम के 39वें डिवीजन में पानी की लाइनों का इफ्तिताह किया गया। रुकन असम्बली अजय कुमार ने घर घर जाकर रस्मन नारियल फोड़ा और बर्तनों में पानी पकड़ा। उन्होंने कहा कि शहर में हर घर को साफ पीने का पानी फराहम करना ही उनका मकसद है। पालेरू जखीरा आप से इन आबादियों को साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। और खबरें तफसील से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने महकमे सेहत के हुकाम के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी एलवी सुब्रमण्यम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने हेल्थ स्कीम का नाम तब्दील करने का फैसला लिया है। एनटीआर वैद्या सेवा को अब डॉक्टर वाईएसआर आरोग्यश्री स्कीम कर दिया गया है। वाज़ेर के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हेल्थ स्कीम को बानी तेलुगु देशम एनटीआर से मौसूम किया था। जगन मोहन रेड्डी ने आशा वर्करों की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफा किया है। आशा वर्करों की तनख्वाहों को 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने आज तिरुपति में NARL का दौरा किया और साइंसदानों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने साइंसदानों को मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करने के लिए इख्तिराई काम करने पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने नौजवानों से अपील की कि अपने लाइफस्टाइल और सेहत का ख्याल रखें और अपने गुरु की इज्जत करें, क्योंकि गुरु ही तालिब इल्म का सही रहनुमा होता है। वेंकैया नायडू ने खिताब के दौरान गुरु और गूगल की अहमियत पर बात करते हुए कुछ देर के लिए हॉल में मौजूद हाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। Remember the motherland, the country which has given you a beautiful opportunity. You must stand for its unity, integrity, safety and security. And then 5th, remember the Guru.
द गुरु ज्ञान देने वाले, आपको सन्मार्ग बताने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए. So Google can never replace Guru. Try to understand that. Google is important. Use it also. I appeal to all the youngsters. Take care of your health. Follow good lifestyle. Don't follow sedentary lifestyle. So I congratulate all the people who are working here, and I wish you all the best. I see that a young laboratory filled with young and enthusiastic people. You have a bright future. God bless you all. सीपीआई लीडरों ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी को एक खुला खत लिखा है. सीपीआई लीडर डी शंकर ने सीएम से रियासत को खुसूसी दर्जा देने के दौरान एहतजाजियों पर आयद किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की है और साथ ही रियासत की तकसीम के वक्त किए गए वादों को पूरा करने के लिए मरकज पर दबाव बनाने की अपील की है. वाईएसआरसीपी की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने का मुतालबा किया गया. అమలు చేయనటువంటి పాలకుల విధానాలకు నిరసనగా ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం ఈ రాష్ట్రంలో తలెత్తింది. వెనుకబడిన ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ జిల్లాలకు ప్యాకేజీలు ఇవ్వాలని, రాజధాని నిర్మాణానికి, పోలవరం నిర్మాణానికి, కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ, విశాఖ రైల్వే జోన్ తదితర విషయాల మీద పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బహిరంగ లేఖను రాస్తున్నాం. ఈ లేఖ ద్వారా పాత్రికేయ ప్రపంచం ద్వారా తక్షణమే ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమకాలు పెట్టిన అక్రమ కేసును ఎత్తివేయమని చెప్పేసి సిపిఐగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. जिला अनंतपुर में कल रात बारिश ने कहर ढाया. कल शाम से पूरे जिले में मौसम अचानक तब्दील हो गया. आसमान पर काली घटाएं छा गई. तेज हवाओं और गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई. पुट्टापर्थी में मंदिर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा. नशेबी इलाकों में मौजूद आबादियों में पानी घुस पड़ा. कोताचेरू पिनुगुंडा में रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया और इस रूट पर ट्रेनों की आमदरफ्त रुक गई है. बिजली गिरने से एक देही इलाके में एक शख्स फौत हो गया. जिले के कई देही इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ता हो गई. कई इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं. कुत्तापल्ली में एक बाइक सवार शख्स नाले में डूबकर हलाक हो गया. पेना नदी में भारी मकदार में पानी जमा हो गया है. कुछ जगहों पर अच्छी बारिश से लोगों ने राहत की सांस भी ली है. मगरबी गोदावरी के एलूर में पुलिस ने गुटखा सप्लाई करने वाले रैकेट को बेनकाब किया. पुलिस ने घर की भी तलाशी ली जिसमें ममनू गुटखा छुपाकर रखा गया था. गुटखा मुंतकिल करने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया गया और साथ ही 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है. వేల ప్యాకెట్లని మొత్తం మీద మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది సుమారుగా వీటిని మార్కెట్ వాల్యూ బయటకు వచ్చేసరికల్లా ఓపెన్ మార్కెట్లో ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ని 10 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయల దాకా అమ్ముతూ ఉన్నారు. యావరేజ్ చూసుకుంటే మొత్తం కలిపి కూడాను 10 లక్షల రూపాయలు ఖరీదైనటువంటి ఈ యొక్క గుట్కా ప్యాకెట్లను ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. సమాచారం తెలియజేసిన వాళ్ళ యొక్క వివరాలను కూడా గోప్యంగా ఉంచడం జరుగుద్ది. అలాగే వాళ్ళు కూడా సొసైటీకి మేలు చేసినట్టుగా భావించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యతగా స్వీకరించాలని చెప్పేసి నా విన్నపం. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఇట్లాంటి విషయాల్లో అసలు దీన్ని ఎవరు కూడా టాలరేట్ చేయొద్దు. ప్రతి ఒక్కరు కూడాను దీన్ని బాధ్యతగా స్వీకరించాలని చెప్పేసి మరి నేను అందరినీ ఈ సందర్భంగా వేడుకుంటున్నాం. ఇప్పటికి 2 మనం అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నారేమో కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం. आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही. मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com.